إن الحمد لله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر اللہ اکبر وللہ الحمد. برادران اسلام، نوجوان ساتھیوں، بچوں، پردہ نشین، عزت دار ماں اور بہنیں، خواتین اسلام، رب العالمین کا جتنا شکر ادا کرو اتنا ہی کم ہے، کیونکہ آج سے ٹھیک 30 دن پہلے میری اور آپ کی نگاہیں، میری اور آپ کی آنکھیں آسمانوں پر تھی کہ چاند نظر آنے والا ہے. ہم لوگ اللہ رب العالمین کی ایک نعمت کو پانے والے ہیں. ہم اللہ رب العالمین کی ایک نعمت کے اندر داخل ہونے والے ہیں. اللہ رب العالمین کی وہ نعمت مجھے اور آپ کو مل گئی. اس نعمت کے اندر میں اور آپ داخل بھی ہو گئے، اور اس کے بعد ٹھیک 2 دن پہلے، ویسے کہ جیسے پہلے مرتبہ میری اور آپ کی آنکھیں آسمانوں پر تھی، سارے لوگ چاند کے منتظر تھے کہ چاند دکھے گا تو ہم لوگ عید کی نماز پڑھیں گے، چاند دکھے گا تو ہم لوگ عید ادا کریں گے، ہم لوگ خوشیاں بانٹیں گے. اللہ رب العالمین کا کرنا وہ بھی ہو گیا کہ اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے حق میں عید الفطر جیسی عظیم عبادت، عظیم دن، خوشیوں والا دن رب العالمین نے مجھے اور آپ کو عطا کیا. اس سے بھی بڑھ کر بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو، بلکہ ہم تمام کو آج ایک چھت کے نیچے ساروں کو مل کر بیٹھنے کی توفیق دی. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین جیسے آج ہم تمام لوگ یہاں پر مل کر بیٹھے ہیں، اے اللہ کل قیامت کے دن بھی ہم تمام کو ایک دوسروں کے ساتھ ایسے ہی مل کر بٹھا دے، اور اس وقت ہمارے چہرے کھلکھلاتے ہوئے ہوں. یہ اللہ رب العالمین سے دعا کریں. بھائیوں، دیکھیے کچھ ایک مختصر سا پیغام عید الفطر کا دے کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں، مومنوں، میں نے آپ لوگوں کو جو آپ پر روزے فرض کیا تھا، وہ روزے فرض کر کے میں آپ کے نفسوں پر زیادتی نہیں کیا، میں آپ پر نقصان نہیں کیا، بلکہ میں آپ کو مشکل میں نہیں ڈالا. اللہ کہہ رہا ہے وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، اللہ آپ پر آسانی ڈالنا چاہتا ہے. یہ روزے میرے اور آپ پر فرض کر کے اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے آسانی کرنا چاہتا ہوں، میں آپ لوگوں کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا ہوں،
मैं आप लोगों को परेशानी में नहीं डालना चाहता हूं, बल्कि मैं आप लोगों को आसानी में डालना चाहता हूं। वला युरीदु बिकुमुल उस्र वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह। और जैसे ही ये रमजान के कुछ गिनती के अय्याम खत्म हो जाएंगे, वलितुकब्बिरुल्लाह, आप तमाम के तमाम क्या करो, अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ बयान करो, उसकी तस्बीह बयान करो, यानी ईद की नमाज पढ़ो। वलअल्लकुम तशकुरून, और जब आपकी इबादतें खत्म हो जाएंगी तो आप क्या किया करो, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करो। भाइयों, यहां पर एक बात अच्छी तरीके से याद रख लो, मैं और आप मुसलमान हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों को माफ करके हमको जन्नत में दाखिल करेगा, ये बात नहीं है, ये बात बद्दुओं की बात है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, यमुन्नूना अलैका अन अस्लमू कुल ला तमुन्नु अलैया इस्लामकुम। क्या आप मुसलमान हो, आप मुसलमान बनकर लोगों पर एहसान जतलाते हो, अल्लाह पर एहसान जतलाते हो? ऐ मोहम्मद, आप आपकी कौम से कह दो, कुल्ला तमुन्नु अलैया इस्लामकुम, बल्कि एहसान जतलाने वाली जात किसकी है? एहसान जतलाने वाली जात अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। कुल्ला तमुन्नु अलैया इस्लामकुम बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान। क्यों अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात एहसान जतलाती है? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे और आपको इस्लाम जैसी अजीम दौलत से मालामाल किया। उससे भी बढ़कर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिन बनाकर मुझे और आपको इस दुनिया के अंदर भेजा है। भाइयों, जैसे ही इबादतें खत्म हो गई तो सारे लोग खुश हो जाएंगे, भाई बस मैं बहुत ज्यादा इबादत कर लिया, मैं बहुत ज्यादा रोजे रख लिया, मैं बहुत ज्यादा क़ियामुल लैल की पाबंदी कर ली, और मैंने बहुत ज्यादा सदका और खैरात कर लिया। लोगों, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, सहाबा इकराम कैसे थे, नेकी करते तो नेकी करने के बाद डर जाते थे। वल्लज़ीना युअतूना मा आतौ व क़ुलूबुहुम वजिलतुन अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन। वो लोग जब अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको माल देता था, उस माल को अल्लाह की राह में खर्च कर देते थे। वजिलत क़ुलूबुहुम, खर्च करने के बाद इबादत करने के बाद उनके दिल कांप जाते थे। उनके दिल क्या हो जाते थे? कांप जाते थे। क्यों कांप जाते थे? इसलिए कांप जाते थे कि मैंने माल तो खर्च कर दिया अल्लाह की राह में, मैंने सदका तो कर दिया अल्लाह की राह में, मैंने इबादत तो कर ली, लेकिन क्या मेरी ये इबादत, क्या मेरे रोजे, क्या मेरी ये सदकात अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल करेगा कि नहीं कबूल करेगा? ये डर था। जब हजरत आयशा इस आयत को सुनी तो फौरन अल्लाह के नबी से कहने लगी, या रसूल अल्लाह, क्या वो लोग जिना करते थे? क्या वो लोग शराब पिया करते थे? क्या वो लोग झूठ बोला करते थे? उस वक्त हजरत आयशा को अल्लाह के नबी ने जवाब दिया, अय आयशा वलाकिन युसल्लून। वो लोग झूठ नहीं बोलते थे, वो लोग शराब भी नहीं पीते थे, वो लोग झूठ भी नहीं बोलते थे, वलाकिन युसल्लून, वो लोग रोजा भी रखते थे, वलाकिन यतसद्दक़ून, वो लोग ज़कात और सदकात और खैरात भी किया करते थे। लेकिन उनको डर था, सहाबा को क्या था? डर था कि हमने जो इबादतें की थी, क्या वो इबादतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कबूल किया कि नहीं कबूल किया? अब हम तमाम लोग रोजे भी रखे, इबादतें भी की, सदका और खैरात भी किए, लैलतुल कद्र की तलाश करके जितनी इबादत करना था उतनी इबादत भी कर लिए। क्या हमारी वो इबादतें कबूल हुई? हम जानते हैं जी, हम जानते हैं, हमको मालूम है कि हमारी इबादतें कबूल हुई कि नहीं कबूल हुई। अगर हम चाहते हैं कि हमारी वो इबादतें कबूल हो जाएं तो मुझे और आपको चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक मेरी और आपकी जिस्म में जान डालेगा, जब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको जिंदा रखेगा, उस वक्त तक अल्लाह से दुआ करते रहें कि इलाहुल आलमीन, मैंने जो भी रमजानुल मुबारक के महीने में इबादतें किया था, मेरी उन इबादतों को कबूल फरमा। तब जाकर मरने से पहले अगर रब चाहेगा, अगर अल्लाह चाहेगा, तो उस वक्त मेरी और आपकी इबादत को और मेरी और आपकी तौबा और इस्तिग़फ़ार को कबूल करेगा। क्योंकि
आज ईद का दिन है, हम जानते हैं ईद की खुशी मनाने के लिए हम लोग आए हैं। असली ईद की खुशी क्या होती है? असली ईद की खुशी क्या होती है? नए नए कपड़े पहनने के लिए पहने, या ये ईद की खुशी है? या जो ज्यादा जाकर शॉपिंग किया, महंगी महंगी शॉपिंग किया, क्या उसके लिए ईद की खुशी है? या जिसके घर के अंदर तरह तरह के पकवान, तरह तरह के मेवे पकाए जाएं, क्या उसके लिए ईद की खुशी है? बोलूं नहीं। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के दौर को देखिए। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु जब खलीफा थे, ईद की नमाज पढ़ लिए, ईद की नमाज पढ़कर अपने घर के अंदर आकर बैठे और अपने हाथ में, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के हाथ में सूखी रोटियां हैं। उन सूखी रोटियों को हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु पानी में भिगो कर खा रहे हैं। एक आदमी हजरत अली से मुलाकात करने के लिए आता है, हजरत अली से बात करने के लिए आता है, आकर पूछता है, ऐ अमीरुल मोमिनीन, ऐ अमीरुल मोमिनीन, आज का दिन तो ईद का दिन है, आज का दिन तो ईद का दिन है, आपको चाहिए था कि आप तरह तरह के खाने खाएं, आप अच्छे के अच्छे खाने खाएं। अल्लाह अकबर, कुर्बान चाहिए उस अली पर। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, लैसल ईद, लैसल ईद लम यलबसिल जदीद, ईद उसका नाम नहीं है जो नए कपड़े पहने, ईद उसका नाम नहीं है जिसके घर के अंदर तरह तरह के खाने पके, बल्कि ईद उसका नाम है कि बंदा रमजानुल मुबारक के महीने में रब्बुल आलमीन से दुआ करे और अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को माफ कर दे और अल्लाह तबारक व तआला उसकी बख्शिश कर दे। जब बंदे की बख्शिश हो जाएगी, जब बंदा अपने गुनाहों को माफ करा दिया जाएगा, उस वक्त मेरी आपकी ईद होगी। मालूम क्या हुआ? मालूम क्या हुआ? हम खुशी में हैं, चलो हमारे 30 रोजे हो गए, हम खुशी में हैं, चलो हम लोग क्या है, फलां की मदद कर दिए, फलां को ज़कात दे दिए, फलां को सदका दे दिए, मेरी ये इबादत, मेरी ये रियाजत और हमारे सदका और खैरात कबूल हो गए। क्या हमारे सदकात और खैरात, क्या ये हमारी नेकियां, क्या ये हमारी इबादतें कबूल हुई? जी हम जानते हैं कबूल हुई? मालूम नहीं। उस वक्त तक नहीं मालूम होता जब तक हमारी सांस बंद ना हो जाए, क़यामत के दिन तक हमको मालूम नहीं होगा। इसीलिए देखिए सहाबा इकराम, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु कितना डरा करते थे। भाइयों, आखिरी बात कहकर अपनी बात को खत्म कर दूंगा, वो ये जो मजलिस में मैं और आप बैठे हैं, हम जानते हैं, हम सारे के सारे इस मजलिस में बैठे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बड़ाई इस मजलिस के अंदर बयान की जा रही है। जिस मजलिस के अंदर रब्बुल आलमीन की तारीफ की जाएगी, रब्बुल आलमीन की बड़ाई बयान की जाएगी, उस मजलिस में अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरिश्ते भी नाजिल होंगे। जब तक नाजिल होंगे, जब तक हमारी मजलिस में बैठेंगे, जब तक हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह बयान करेंगे। जैसे ही बंदे रब्बुल आलमीन की तस्बीह बयान करके खत्म कर देंगे, फौरन वो फरिश्ते रब्बुल आलमीन के पास जाएंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला उन फरिश्तों से पूछेगा, ऐ फरिश्तों कहां से आ रहे हो? ऐ फरिश्तों कहां से आ रहे हो? तो उस वक्त फरिश्ते कहेंगे, ऐ अल्लाह, जमीन पर गए थे, जमीन पर गए थे। अल्लाह कहेगा, क्यों गए थे? तेरे कुछ बंदे हैं, इबादत तेरी कर रहे थे, तेरी बड़ाई बयान कर रहे थे। तो उस वक्त हम भी वहां पर बैठकर, कुछ देर बैठकर, जब तक तेरे बंदे बड़ाई बयान करे तेरी, उस वक्त तक बैठे। जैसे ही तेरी बड़ाई बयान खत्म कर दिए, हम लोग वहां से निकल गए। तो अल्लाह कहेगा, फरिश्तों मेरे बंदे क्या पूछ रहे हैं, मेरे बंदे किस चीज का सवाल कर रहे हैं? तो उस वक्त फरिश्ते कहेंगे, ऐ अल्लाह तेरे बंदे जन्नत का सवाल तुझसे कर रहे हैं। तो उस वक्त अल्लाह कहेगा, फरिश्तों क्या मेरे बंदों ने जन्नत को देखी है? क्या मेरे बंदों ने जन्नत को देखी है? तो उस वक्त फरिश्ते कहेंगे, नहीं अल्लाह, क्या हमने जन्नत देखी नहीं देखी है। तो फरिश्ते कहेंगे, नहीं देखी अल्लाह, तेरे बंदे जन्नत नहीं देखे। तो अल्लाह कहेगा, अगर मेरे बंदे जन्नत को देख लेते तो उनका हाल क्या होता? तो फरिश्ते कहे, ऐ अल्लाह, अगर तेरे बंदे एक मर्तबा जन्नत को देख लेते, एक मर्तबा जन्नत को देख लेते, तो उनका शौक और बढ़ जाता और जन्नत में जाने की तमन्ना करते। तो उस वक्त अल्लाह कहेगा, अच्छा मेरे बंदे किस चीज से पनाह मांग रहे थे, किस चीज से बचने की दुआ कर रहे थे? उस वक्त अल्लाह फरिश्ते कहेंगे, ऐ अल्लाह,
तेरे बंदे जहन्नम से पनाह मांग रहे थे, जहन्नम से बचने की दुआ कर रहे थे। अल्लाह अकबर। उस वक्त अल्लाह कहेगा अच्छा मेरे बंदे जहन्नम से बचने की दुआ कर रहे थे, क्या मेरे बंदों ने जहन्नम को देखी है? तो उस वक्त फरिश्ते कहेंगे नहीं देखे अल्लाह। तो अल्लाह कहेगा अगर मेरे बंदे जहन्नम को देख लेते तो उनका अंजाम क्या होता, उनका हाल क्या होता? तो फरिश्ते कहे ऐ अल्लाह तेरे बंदे जहन्नम को देख लेते दूर से भी तो उससे बचने की पूरी जिंदगी दुआ करते। अच्छा एक बात बताओ मेरे बंदे और किस चीज की दुआ कर रहे थे? तो उस वक्त अब यहां पर गौर से सुनिए, उस वक्त फरिश्ते कहेंगे अल्लाह तेरे बंदे गुनाहों की बख्शिश तलब कर रहे थे, तुझसे माफी मांग रहे थे। उस वक्त अल्लाह कहेगा फरिश्तों गवाह हो जाओ, फरिश्ते गवाह हो जाओ, जितने भी बंदे बैठकर ये जो मजलिस है वो सारी की सारी मजलिस को, सारे के सारे लोगों को मैंने माफ कर दिया आज के दिन। उस वक्त फरिश्ते आकर कहेंगे अल्लाह अल्लाह रुक जा, अल्लाह रुक जा, जितने लोग वहां पर बैठे थे सारे के सारे नेक नहीं थे, सारे के सारे इबादत करने वाले नहीं थे, सारे के सारे तुझसे राजी करने वाले नहीं थे, उसमें कुछ लोग कबीरा गुनाह करने वाले भी थे, उसमें कुछ लोग तुझे नाराज करने वाले भी थे, उसमें कुछ लोग बड़े बड़े गुनाह करने वाले भी थे। तो उस वक्त अल्लाह कहेगा कोई मसला नहीं, जाओ आज के दिन गवाह हो कि मैंने अपने बंदों को माफ कर दिया। सुभान अल्लाह। अब भी हमारे पास वक्त है, अगर कोई बंदा रमजान के महीने में माफी नहीं मांगा है, रमजान के महीने में अल्लाह की इबादत नहीं की है, आज के दिन भी हमारे पास मौका है, आज के बाद 11 महीने हमारे पास मौका है। कभी भी हम अल्लाह तबारक व तआला से अगर माफी मांगेंगे, अल्लाह तबारक व तआला के पास अगर गिड़गिड़ाएंगे, वल्लाह अल्लाह की कसम है अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाहों को जरूर माफ करेगा। और जो वादा अल्लाह ने किया था कि जितने लोग बैठकर मेरी इबादत कर रहे हैं मैं उन तमाम को माफ कर दूंगा। क्या हमारी ख्वाहिश नहीं कि हमारे गुनाह माफ हो जाएं? जी, क्या हमारी ख्वाहिश नहीं है कि हम जन्नत में जाएं? क्या हमारी ख्वाहिश नहीं है कि हम जहन्नम से बचें? है ना, हर किसी की ख्वाहिश होती है। अब भी हमारे पास वक्त है, अब भी हमारे पास वक्त है, मौत तक हमारे पास वक्त है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करें और अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफी मांगे। इसी पर, इस छोटे से पैगाम पर अपनी बात को खत्म करते हुए रब्बुल आलमीन से दुआ गो हूँ, इलाहुल आलमीन हम तमाम के गुनाहों को माफ फरमा दे। इलाहुल आलमीन हमने रमजान में जो इबादतें की हमारी उन इबादतों को कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन हम लोग गुनहगार हैं, हमारे गुनाहों पर पर्दा डाल दे। इलाहुल आलमीन हमसे जो छोटे मोटे गुनाह हुए हैं हमारे उन गुनाहों पर पर्दा डाल दे। इलाहुल आलमीन रहम करम का मामला फरमा। इलाहुल आलमीन आफियत वाला मामला फरमा। इलाहुल आलमीन मुसलमानों की हिफाजत फरमा। इलाहुल आलमीन मुस्लिम मुल्कों की हिफाजत फरमा। इलाहुल आलमीन मसाजिद की हिफाजत फरमा। इलाहुल आलमीन मदरसों की हिफाजत फरमा। इलाहुल आलमीन मुस्लिम खवातीन की हिफाजत फरमा। इलाहुल आलमीन हमने रमजानुल मुबारक के महीने को वैसे नहीं गुजारा जैसे गुजारना था, हमारी इबादतों को कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन हमने लैलतुल क़द्र को वैसी तलाश नहीं किया जैसे तलाश करना था। इलाहुल आलमीन हमारी छोटी मोटी इबादतों को कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन जितने भी लोग इस दुनिया को छोड़कर चले जा चुके हैं उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे गुनाहों पर पर्दा डाल दे। इलाहुल आलमीन हम तमाम को जहन्नम की आग से बचा। इलाहुल आलमीन हम तमाम को जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम तमाम को कब्र के आजाब से बचा। इलाहुल आलमीन तमाम मुसलमानों को फितनों से बचा, फितनों के दौर से बचा, दज्जाल के फितने से बचा। इलाहुल आलमीन हम तमाम को कब्र के आजाब से बचा। इलाहुल आलमीन हम तमाम को कब्र के आजाब से बचा। इलाहुल आलमीन जितने भी नौजवान बेरोजगार अपने घरों के अंदर बैठे हुए हैं अल्लाह उनको रोजगार तलाश फरमा। अल्लाह उनको हलाल रोजी अता फरमा। अल्लाह उन तमाम को हराम से बचा। अल्लाह जितने भी लोग ऐसे भी हैं कि उनके घरों के अंदर रिश्ते नहीं लग रहे हैं अल्लाह उनको नेक रिश्ते अता फरमा। इलाहुल आलमीन उनको जहन्नम के अजाब से बचा। इलाहुल आलमीन हम तमाम के गुनाहों को माफ फरमा दे। इलाहुल आलमीन हमारी नेकियों को कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन हमारी इबादतों को कबूल फरमा। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइल मुस्लिमीन इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। भाई